Take a deep breath, close your eyes, and observe silence for a little while. Be centered, be grounded. May we be blessed with divine intervention. Namaste, everyone. So, we started with the 8th Adhyay, and we were able to look at 3 verses, right? Before we go ahead, I just wanted to check कोई प्रश्न है किसी के मन में कुछ भी ऐसा है जो, तो वहां से आरंभ कर लेते हैं. गीता का नहीं है, बस वही था कि रेकी और प्राणा और प्राणिक हीलिंग इनके डिफरेंसेस। मतलब मैं एमए कर रही हूँ, उसमें मेरा एक टॉपिक है जिसमें ये सब मुझे क्लियर होना चाहिए, तो उनके नोट्स बहुत खराब है तो। So you need to learn Reiki. Okay. Basic differences, Reiki in healing may we use the universal healing energy, which is of a high frequency. In pranic healing, you use your own pranic energy. That's why pranic healing must not be practiced by everybody, because until unless you are a very detached person, आप एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी. देयर लॉट ऑफ पीपल हु कांट डू प्राणिक हीलिंग, सीख लेते हैं और एक दो हीलिंग करने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि आई गो डाउन द ट्रेन, क्योंकि मेरी अपनी पूरी एनर्जी एकदम डिप्लीट हो जाती है एंड आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट, बिकॉज पीपल, we don't practice detachment, we don't live by detachment, right? So a lot of time when you do healing you expect कि सामने वाला ठीक हो जाए, कुछ improvement आए, and all these expectations, they attach you. So pranic healing must not be done by everyone because you use your own prana. But Reiki healing is a very safe thing. You are taught how to do it, and you also are taught how to take protection. And if you have been initiated properly, then you are made one-way channel. So you must learn it from the right source. And to tell you the right thing, level 1 में Reiki में you have 4 initiations. 2 happens on day 1 and 2 happens on day 2. By the very characteristics, these initiations should happen at the gap of 12 years, 12 hours, but essentially within 24 hours. That's why it has to get split to 2 days. Okay. And in the last initiation or attunement, one is made a one-way channel. So your channel to absorb it back is blocked. So in no way you will absorb anybody's energy, and that's why it is very safe. If you have not learned Reiki from the right source or the right way, the traditional Usui way, then there will be a problem. Yeah, Vidya. और जो एक चीज और, मतलब रेकी एज अ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकी? रेकी और प्राणा में डिफरेंस क्या है? Okay. Reiki is the word is split into two. Re is universal, ki is healing energy. So it's a universal healing energy, and this is a very high frequency energy. जैसे कि हम लाइट में इंफ्रारेड रेज नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जब तक मशीन्स ने हमको नहीं बताया था कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, तब तक हम उनको बिलीव नहीं कर सकते थे, हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे. सो सिमिलरली ये एनर्जी आप देख तो नहीं सकते हैं, बट यू कैन एक्सपीरियंस. बट उसको एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू बी ट्यून्ड टू इट. तो जैसे साउंड वेव्स हैं, बट टू लिसन टू एनी एफएम चैनल, आप इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं सो दैट इट कैचेस दैट. So in the Reiki initiation process, you are made to
इसीलिए उसको attunement भी कहते हैं. You are tuned to receive that energy. So that's a very high frequency energy in the cosmos, which has got healing property. Which has got healing property. So that is attuned, and it उसका जो चैनल बनाते हैं ना, that's almost at a difference of 1 inch from your pranic channel in the body. So a lot of people say it's the same energy, but in my understanding, Reiki is it's see the pranic energy also the quality. Prana जो हमारे बॉडी में चलता है ना, we do not experience it at the very high level, क्योंकि हमारी अपनी कंडीशनिंग इतनी है और हमारे अपने एनर्जीज जो है वो इतने लो लेवल पे होते हैं that we don't experience full of prana. That's why you do pranayam, because what do you do via pranayam? आप आपकी जो प्राणिक एनर्जी है उसको चैनलाइज करते हैं. अभी आपकी एनर्जी चारों ओर जा रही है. You want it to become more tuned. That's what pranayam does. So that's why you do prano ka ayam. And breath is an instrument to do that. It's not the breath, it's breath is an instrument to do that. So reiki energy का जो vehicle है वो prana ही है. So the channel is created at the distance of approximately 1 inch, and that's happen on the energy body. It doesn't happen on your physical body. तो अगर इसको डिसेक्ट करके ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. It happens on your energy body. And yes, there are cameras which can see the aura and the chakras. तो आपको वो system दिख सकता है through them. And then there are people who are trained to see aura by their naked eye also. Like my grandmaster could see. So this is the prime difference. But pranic healing में आप अपने एनर्जी को यूज करते हैं. नहीं, एक्चुअली हमारा प्राणिक हीलिंग का जो भी एक छोटा सा क्लास हुआ था टू इंट्रोड्यूस अस, तो उसमें जो हीलर था उसने बोला था कि हम अपना प्राणा नहीं यूज करते, यूनिवर्सल प्राणा को ही हम चैनलाइज करते हैं. एंड लाइक यू सेड इट इज वेरी सेफ बिकॉज वी आर नॉट इम्पैक्टेड. ही आल्सो सेड कि वी आर ट्रेन्ड इन सच अ वे दैट वी आर नॉट अफेक्टेड बाय इट. पता नहीं. then you must ask him and seek training, because जितने लोगों को मैंने देखा है, and I also had a word with my grandmaster because she's also a pranic healer, and I requested her to teach me pranic healing almost 2 years ago, and then she said absolute no. She said no, you are yet not at that space that I can teach you pranic healing. You will be drained while doing it. And now she has agreed to teach to me, but check with him how they do it. Then maybe they have different डिफरेंट स्कूल. yeah. Yeah. Tell me. Since we are talking about Reiki, so one question came in my mind. There is a Reiki healer over here that my someone sees, and I don't understand the term that they used, attunement. She did an attunement for them, so I was kind of puzzled because Attunement and initiation are the same thing. yeah, but how can you use a attunement during a therapy session? That's my question. No, It you do just not attune during a therapy session. You so are she attuned when you teach Reiki and you become a Reiki channel. yeah, that's what my understanding was. And then she said she gave them a attunement. I was like, how can she give them a attunement while she is healing So them? ask if she made them a channel or did she do a Reiki therapy. Check with that. What did she do? But she only does it to her students. Like if they learned Reiki from them, and if they're getting a session of Reiki from her, like the energy healing, during that session, she does an attunement. This is how they verbalized it, which made me feel so confused. I was like, no, this is not what attunement it Check with is. them. What do they do? Check with them. What do they do? Perhaps they are doing something else. They're not just giving the healing therapy. They're doing something else as well. Okay. Okay. Let's come back to Bhagavad Gita. Yeah. So we looked up to third, है ना? शिल्पी आज आप पढ़िए फोर्थ वाला. Are you ready? पढ़ता हूँ.
शुरू करें। अधिभूतं शरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभूताववर। हमने इसको आरंभ किया था पिछली बार, शायद थोड़ा सा मुझे ठीक से याद नहीं है। अधिभूतम शरो, सो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों पर कि अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या होता है। तो कृष्ण कहते हैं अधिभूतम शरः, शरः भाव, अधिभूतम वो है जो, शर का मतलब होता है जो पेरिशेबल है, जो खत्म हो जाता है। तो ऐसा भाव या ऐसा नेचर, भाव इज द नेचर और द वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टार, ऐसा जो, जिसका अंत होता है, जो समय में जिसकी उत्पत्ति हुई और फिर समय में अंत हो गया, उसे हम अधिभूत कहते हैं। उसके बाद कहते हैं पुरुषः च अधिदैवतम। तो अधिदैव, अधिदैव क्या है? अधिदैव पुरुष है। अधियज्ञः अहम अत्र देहभृतांबर। अधियज्ञ मैं ही हूं, अत्र देह इस देह में, इस शरीर में, देहभृतांबर जिसने शरीर को धारण किया है उसके शरीर में मैं अधियज्ञ हूं। ओ बेस्ट ऑफ द इम्बॉडीड, वो अर्जुन के लिए प्रयुक्त करते हैं। सो द वन ऑफ पेरिशेबल नेचर इज द अधिभूत and Purusha is Adhidevata. I am the Adhiyagya here in this body, O best of the embodied. और इसमें क्या कहते हैं, अम्मा क्या कहते हैं गीता प्रेस में? उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। उत्पत्ति और विनाश के विषय में तो हमने इतनी बार बात की है that now we understand it, right? And कुछ है उसके विषय में बोलने के लिए, उत्पत्ति और विनाश के विषय में बोलने के लिए? इसके बारे में एक दो और बातें जो है, जो ध्यान देने लायक हैं, वर्थ पेइंग अटेंशन। ये जो कुछ भी होता है, जो पदार्थ है जिसको अधिभूत कहते हैं हम, ये सब अस्थिर हैं। अस्थिर मतलब जो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है तभी समय में उत्पत्ति हुई और समय में विनाश हो गया, क्षय हो गया। शरह, what is interesting to understand is, जिसका क्षय नहीं होता, जो समय में बिल्कुल स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं है, अतः सटल है, सूक्ष्म है। जो परिवर्तनशील है वो हमको तुरंत समझ में आ जाता है ना। हम जो बदल रहा है उसको तुरंत नोटिस कर लेते हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं है, एकाएक एक वृक्ष आया, एक पेड़, एक घर आया, कोई बिल्डिंग आई, कुछ खुदाई हुई, परिवर्तन इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है। किंतु यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसको नोटिस करना बंद कर देते हैं। तो जो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है, आप पाएंगे कि वो बहुत ही सटल है। जैसे आकाश, कोई परिवर्तन नहीं है तो हम आकाश को नोटिस ही नहीं करते, जबकि भौतिक वस्तुएं हमको तुरंत पता चल जाता है।
पेन यहाँ थी, वहां उठाई, ये चीज खत्म हो गई, वो चीज टूट गई, वो गंदी हो गई, वो साफ हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो परमात्मा के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, इसलिए उसके होने का हमें आभास ही नहीं होता है। और हमारे आसपास जितने लोग हैं, जो कुछ भी है, वो क्योंकि परिवर्तनीय है, इसलिए हमें उनके होने का ना होने का हर समय आभास होता है। तो अधिभूत वो जो परिवर्तनीय है। तो ये आप समझ जाइए कि कुछ भी अगर आपको अपने होने का आभास दिलाता है ना, that I am, that is अधिभूत। Look at it like that। जो चीज आपको अपने होने का बहुत आभास दिलाता है, तो वो आपको अपने न होने का भी उतना ही आभास दिलाएगा। दैट इज अधिभूत। वो सब भौतिक है, वो सब पदार्थ है। ठीक है। सो एनीथिंग दैट यू गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट, नोटिस इट हैज टू बी समथिंग विच इज चेंजिंग। इसीलिए वो आपको एंजाइटी दे रहा है, इसीलिए वो आपको डर दे रहा है, इसीलिए वो आपको अपने होने का एहसास दिला रहा है। वो सब कुछ भौतिक है। ठीक है। अब आते हैं पुरुषः च अधिदैवतम्। कई जगह पे मैंने इसमें हिरण्यमय शब्द देखा है, विच इज बीइंग अज्यूम्ड, क्योंकि वो ज्यादातर इसके साथ में लेते ही हैं अधिदेवता के साथ में। हिरण्यमय गर्भ कहते हैं वो बड़ा सा अंडा जिससे पूरे ब्रह्मांड ने जन्म लिया। तो द वेरी सोर्स दैट गेव हिरण्यमय, दैट गेव उत्पत्ति टू हिरण्यमय, फ्रॉम विच द एंटायर, ऐसी आपको कथाएं बहुत जगह स्थानों पर मिलेंगी। इसको हिरण्यमय गर्भ के नाम से ही बहुत जगह आप पढ़ेंगे कई स्थानों पर। पुरुष जो है ना, पुर का अर्थ होता है स्थान, प्लेस। ये हम समझते हैं, कई स्थानों के नाम ही हम जानते हैं, कानपुर है, पुर, कई कई शब्दों के साथ आप, तो वो स्थान को इंडिकेट करता है। पुर हमारे लिए क्या है? हमारा ये पूरा जीवन है, हमारा शरीर है। पुर के बीच में जो स्थित है, उस स्थान के, उस पूरे स्थान इज अ बाउंड्री। कोई भी जगह है वो एक बाउंड्री है, उसकी सीमा है, तभी आप कहते हैं कि ये स्थान है। अगर बाउंड्री ही ना हो तो आप कह ही नहीं पाएंगे कि ये स्थान है। सो एसेंशियली पुर जो है वो किसी भी प्रकार के बाउंड्री को इंडिकेट करता है। उस बाउंड्री के बीच में जो स्थिर है उसको पुरुष कहते हैं, उसको पुरुष कहते हैं। नानक का जो ये है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, एक ओंकार, उसमें भी इसका है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। ये कर्ता पुरख भी इसी पुरुष से होकर के आता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी स्थान के बीच में जो चेतना स्थिर है वो अधिदेव है, वो ही अधिदेवता है। और इसके पश्चात कह रहे हैं कि अधियज्ञ कौन है? इस शरीर में जो मैं ही अधियज्ञ हूं। तो यज्ञ का भाव जो है वो दो तीन तरह से ले सकते हैं। एक तो हमारा जीवन यज्ञ यदि है तो वो धर्मोचित है, अर्थात वो कृष्णमय है। ठीक है। यदि हमारा जीवन एक यज्ञ रूप है तो यज्ञ वो जो धर्म के अनुकूल हो, धर्म वो जो कृष्ण हो। तो जो कृष्ण तत्व है हमारे भीतर वही अधियज्ञ है।
ठीक है, तो इस प्रकार अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का कृष्ण ये दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न के अनुसार। और हमेशा एक बात जो बहुत ही मजेदार है, कृष्ण ने अर्जुन को जब भी जिस भी रूप से संबोधित किया है ना, वो उसके उत्तर के अलाइनमेंट में है। कहीं पर वो पार्थ कहते हैं, कहीं पर वो कौन्तेय कहते हैं, कहीं पे वो और भी कई नाम से कहा है उन्होंने, और यहाँ पर कहते हैं वर। वाई? बेस्ट ऑफ इम्बॉडीड, क्योंकि अर्जुन सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है, मतलब सभी अ, जो शरीरों में श्रेष्ठ है। तो हर जगह वो अर्जुन को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यू आर क्लास अपार्ट अमंगस्ट मेन, अमंगस्ट मैनकाइंड। वो हर स्थान पर वो कह रहे हैं। इसका कुछ और है जो प्रश्न उठ रहा हो, या एनी एडिशन, कुछ एनी कमेंट? एक बार आदि देवतम, इसको एक बार फिर से बताएंगे? हमारे भीतर बैठी जो चेतना भाव है, अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना होगा ऋचा। हमने हमेशा ये देखा है कि जो हमारे भीतर चैतन्य भाव है उसको ही हम ब्रह्म रूप देखते आए हैं, उसको ही हम कृष्ण तत्व कहते हैं। किंतु यहाँ पर जो चेतना है वो अलग है। यहाँ पे वो चेतना है जिसके हम स्तर की बात करते हैं। जो कृष्ण तत्व वाली चेतना है उसको आप अवेयरनेस की तरह देखिए, और ये वो चेतना है जिसके अलग अलग स्तर होते हैं। जब हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात करते हैं, तो हम चेतना के स्तरों की बात कर रहे हैं ना। तो जब स्तरों में सर्वश्रेष्ठ हो गया वो कृष्ण है, वो अधियज्ञ है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द लेवल्स, उस लेवल में जो एक हायर लेवल पर स्थित है वो अधिदैव है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस नहीं है। वो है चैतन्य, किंतु अभी वो कृष्णमयी नहीं हुआ है। इट हैजंट रीच टू इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल। तो इसको बहुत कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, नहीं तो शब्द हमको बहुत भ्रमित करेंगे। तो आदि यज्ञ जो है वो सेल्फ के लिए यूज हुआ है, वो ब्राह्मण के वो लिए सेल्फ यूज हुआ के है? लिए यूज हो रहा है, वो ब्रह्म के लिए यूज हो रहा है। अच्छा। मैम इसमें जब आपने पुरुष बोला तो इसमें सांख्य योग का पुरुष प्रकृति में पुरुष जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है वो कंटेक्स्ट पे सही बैठता है ना? नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर। वो वहां यहाँ पर देखिएगा तो अधियज्ञ के लिए बोला जा रहा है। कृष्ण कह रहे हैं अधियज्ञ मैं ही हूँ जो इस ओके, शरीर में। मुझे पुरुष से वही समझ में आया, पुरुष प्रकृति वो में कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। वो होता है कंफ्यूजन, इसीलिए फिर मैंने कॉन्टेक्स्ट की बात की। आप जब भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो देखिए, संस्कृत हिंदी की ऐसी भाषाएं हैं जो कॉन्टेक्स्ट पे चलती हैं। जैसे अंग्रेजी में हमने जिसको चिड़िया कह दिया वो चिड़िया ही है। हिंदी में और संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थिंग विच डिफाइंस इट्स नेम। इसीलिए जो शब्द काम है या जो शब्द अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के कितने अर्थ हम जानते हैं। अर्थ का एक अर्थ होता है जो आपने उसको मीनिंग दी, सो व्हाट डज इट रियली मीन फॉर मी। एक अर्थ हम कहते हैं मुद्रा को, पैसे रुपए को, धन को, कि क्या अर्थ है, कितना अर्थ कितना है, इसका अर्थ तो बताओ। उसको भी हम अर्थ कहते हैं। क्यों? बिकॉज दैट मनी इज गिविंग मीनिंग टू यू इन सर्टेन वे। You have given yourself certain meaning to earn that money. Similarly काम है। और इसीलिए हम जो चार हमारे पिलर्स की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
वहां पे अर्थ धन भाव से है, मीनिंग से थोड़ी होता है। काम है, हम जो करते हैं हमारे एक्शंस, हम उसको भी काम कहते हैं। काम वासना को भी काम कहा जाता है। द फिजिकल इंटीमेसी, उसको भी काम ही कहते हैं। कामनाओं को भी हम काम कहते हैं, डिजायर्स। Why? Because all of these are of same nature. All of these are of same nature. तो जब आप संस्कृत में कुछ भी पढ़ रहे हैं, you will have to be little conscious about the context that it is being said at. ठीक है? मैम मगर धातु तो सेम ही रहेगी ना, हाँ, मतलब अगर चाहे काम तो धातु सेम है, इसीलिए तो अगर आप देखेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक सेम दिखा रहा है ना। जैसे काम है, आप जब काम वासना में उतरते हैं तो भी आप अपनी वासना के लिए उतरते हैं। जब आप काम करते हैं तो भी आप हैं जो काम कर रहा है। और जब डिजायर्स, कामनाओं की बात होती है तो भी वो आपकी डिजायर्स होती हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली action of yours which is coming up from your own vrittis. So you have to always look at the context. जैसे मैंने कई बार ये उदाहरण दिया, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया, पर फिर भी दे देती हूँ। हिंदी में संस्कृत में ख शब्द जो है, that indicates vastness, expanse. जो उसका ख का धातु है ना, जो शब्द के, जो शब्द कह रही हूँ, जो उस लेटर का अर्थ है, ग जो है वो that indicates गति। इसीलिए गमन होता है, गति होती है, गोचर होता है, एनीथिंग दैट मूव्स। तो खग जो शब्द है वो हम पढ़ते तो हैं कि चिड़िया के लिए है, जो आकाश में उड़ता है, किंतु संस्कृत में विमान को, एरोप्लेन को भी खग कहा जाएगा, because it is also flying in the akash, in the vast expanse. Anything that is moving in that vast expanse is called khag. So you will have to always look at the context while studying this language. इसीलिए ये भाषा जो है थोड़ी सी अंग्रेजी के कंपैरिजन में, और भाषाओं के बारे में मुझे पता नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकती हूँ, बट फॉर श्योर अंग्रेजी के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज यू विल हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। और तभी हम जा करके रूट्स को इतना पढ़ते हैं, धातुओं को इतना पढ़ते हैं। ठीक है? फिफ्थ वन, आभा। शी इज ऑलरेडी अंडर इम्प्रेशन कि मैं शीर जी को ही बोलने वाली हूँ। अच्छा, ओके। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। ये पहले 4 श्लोकों में तो जैसे कृष्ण ने कोई भी अध्याय समाप्त किया है तो he has left clues for Arjun to pick up from there and ask more questions. तो वहां पहले 4 वर्सेस में he has answered Arjun's quest, किंतु उसके पश्चात यहाँ से जो है ना, ये पूरा अध्याय आगे आरंभ होता है कि हमको जीवन कैसा जीना चाहिए ताकि हम ब्रह्म को प्राप्त कर सके। हमको जीवन कैसा जीना चाहिए ताकि हम ब्रह्म को प्राप्त हो सके। और आरंभ करते हैं कृष्ण मृत्यु से। उसके लिए what he is putting up as a standard is the way we leave the body. तो कह रहे हैं अंतकाले, अंतकाले is the time of the death of the body, at end, च मम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवर।
सिर्फ जो मेरा स्मरण करता है उसे ही मुक्ति प्राप्त होती है। कलेवरम का अर्थ होता है बॉडी, तो अंत काले ऑफ हुज बॉडी, एट द एंड ऑफ द बॉडी, द वन हु इज remembering me alone becomes free, becomes mukta. यह प्रयाति, यह is who, प्रयाति is goes, सह, so the one who goes like this, मत भावम, मत भाव here is my being, कृष्ण के being की बात कर रहे हैं वो, याति न अस्ति अत्र संशयः, याति is achieves, so what you achieve, न अस्ति, no, अस्ति is है, sanshaya is doubt, and atra is here. So what it is translating to is, and those who at the time of death, remembering or meditating on me alone, goes forth leaving body, attains my being. Or those who relinquish the body or gives up the body while remembering me at the moment of death will come to me. There is no doubt about it. जो मृत्यु के समय, इस शरीर के मृत्यु के समय मुझे याद करेंगे, वो मुझ तक ही आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बुद्धिज्म में एक शब्द प्रयोग करते हैं बारदो। If you want to know more about it, the book that is recommended to read is the art of living and dying, something like that. I'll get you the name. Bardos are those specific moments जो आपके लिए मोक्ष के प्रति छलांग लगाने के लिए बहुत कारगर होता है। जब आप वुम्ब में आते हैं वो एक बारदो होता है, और जब आप इस शरीर को त्यागते हैं वो एक बारदो होता है। And there are two more bardos. They talk of 4 bardos, or 4 moments wherein the possibility of making this qualitative jump is very, very high. It is like एक क्षण में आपने प्राप्त कर लिया वैसा। Now what he is saying is, मृत्यु के क्षण में, शरीर को छोड़ने के क्षण में, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मुझे पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम ये सोचे कि मृत्यु के क्षण में हम कृष्ण को याद कर लेंगे और हम जीवन भर कुछ भी कर लें, यह असंभव है। गरुड़ पुराण और पुराणों को कभी भी एज इट इज नहीं लेना चाहिए। दे आर स्टोरीज इन लक्षणा, इंडिकेटिव है। कोई भी पुराण को यदि आपने पढ़ करके जैसा कहानी है वैसा ही अर्थ ले लिया तो आपने पुराणों के साथ बहुत अत्याचार किया। पुराण needs to be decoded the exactly same way that Upanishad needs to be decoded, but इसका डिकोडिंग और उसका डिकोडिंग बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चलता है। तो पुराण इज मोर फॉर आम जनता। जब मनुष्य की चेतना थोड़ी गिर गई थी तब पुराणों ने प्रवेश किया, क्योंकि कहानियां ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति सुनना चाहता है। कितने लोग गीता उपदेश सुनना चाहते हैं, कितने लोग उपनिषद पढ़ना चाहते हैं, किंतु कहानियां आप बताएं तो खूब चलती है। That's how Puran came into existence, for the purpose of stories. तो गरुड़ पुराण में, और ये हमारे यहाँ प्रथा भी है कि जब व्यक्ति शारीरिक मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम गरुड़ पुराण की कथा पढ़ते हैं। वो कहता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को 1000 बिच्छुओं के डंक के भांति कष्ट होता है। Why it is saying so? If you look at the hidden meaning, हम शरीर से इतने चिपके होते हैं क्योंकि हम तो शरीर को स्वयं मानते हैं ना, दिस इज मी।
अपने बारे में जब बात करते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ आता है, इस तरफ आता है। हम ये तो नहीं कहते मैं, ऐसा तो नहीं होता। मैं, इतना ज्यादा हम इस शरीर से चिपके हैं, सबकॉन्शियसली भी, दिस इज मी। मुझे कोई खतरा है माने इस शरीर को कोई खतरा है, मुझे कोई खतरा है माने इस शरीर को कोई खतरा है। हम जो पूरे समय अपने आप को कंफर्ट के लिए पेलते रहते हैं, पैसा होगा तो कंफर्टेबल घर होगा, कंफर्टेबल गाड़ी होगी, कंफर्टेबल ट्रैवलिंग होगी, वो कंफर्ट हम किसको देते हैं? वो हम शरीर को देते हैं। तो हमारा शरीर भाव बहुत गहन होता है, बहुत गहरा होता है, और उसको तोड़ पाने के लिए बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। क्योंकि साधना तो हमने की नहीं होती है जीवन भर, तो ये शरीर को कैसे छोड़े? आपको क्या लगता है कि लोग इतनी लंबे लंबे समय तक आईसीयू में, वेंटिलेटर पे क्यों लटके रहते हैं? क्या कारण है कि शरीर जवाब दे रहा है किंतु प्राण जवाब नहीं दे रहे? उसका कारण ही ये है, शरीर से हम इतने चिपके हुए हैं कि जब तक द बॉडी टोटली गिव्स अप कि भाई अब मैं आई कांट कंटेन दिस एंटायर प्राणा, तब तक हम शरीर छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसीलिए कहता है गरुड़ पुराण कि द पेन दैट यू अंडरगो फॉर लीविंग दिस बॉडी is equivalent to the dunk of 1,000 bichu. That's the intensity of the pain that one undergoes. इसीलिए मृत्यु की, शारीरिक मृत्यु की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। नहीं तो वो क्षण, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। अब कृष्ण कह रहे हैं उस समय मुझे नहीं याद किया तो मुझ तक नहीं आओगे, और मुझे याद कर लिया तो श्योर शॉर्ट रास्ता है कि मुझ तक पहुंच जाओगे। सच ए बिग शॉर्टकट। हर व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैं तो मृत्यु के समय कृष्ण को याद करूंगा और कृष्ण तक पहुंच जाऊंगा, किंतु कृष्ण को उस क्षण में याद करने के लिए, जब आपका अपना अटैचमेंट इतना गहरा है जो छोड़ नहीं पा रहे हैं आप, अभी तो पूरा ध्यान इधर केंद्रित हो जाएगा ना, कृष्ण तक कहाँ जा पाएगी ध्यान? तो कैसे याद करेंगे कृष्ण? इसीलिए जब जीवन भर आप कृष्ण को याद करते हैं, तभी मृत्यु के क्षण में भी आप कृष्ण को याद कर पाते हैं। सो ही इज सेइंग, अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध कर, मुझे याद करके युद्ध कर और सब कुछ भूल जा। मैंने कहा है इसलिए युद्ध कर, गांडीव उठा। एनीथिंग हियर? स्पष्ट है ये? ओके। एक प्रश्न है कि मतलब कर्म का तो हिसाब लगेगा ना, मैं ऐसा तो नहीं कि या लास्ट मोमेंट पे तो बस अब मैं कर्म बंधन से छूट कुछ गया। हमारे जीवन के ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आपके कार्मिक डिसोल्यूशन बहुत फास्ट होते हैं। देर आर वेरी बिग वे ऑफ, जो वेदों में इतना डोनेशन के बारे में कहा जाता है ना, या अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वहां भी आपको बहुत कुछ डोनेट करने के लिए बताया जाता है एज रेमेडीज। ये जो अर्थ का मूवमेंट है ना, दैट इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्म। ऐसे होता है। सो देर आर वेज इन विच यू कैन डिसॉल्व योर कार्मिक। हम हीलिंग क्यों करते हैं, हम भक्ति में क्यों जाते हैं? व्हाट हैपेंस, हमारे पास बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स हैं which are not pro us. When I move into bhakti, I start to create karmic patterns which are pro me, and then dissolution of the negative ones happens.
तो फिर से बोल रही हूँ पारुल, आप अंत में कृष्ण को तभी याद कर पाएंगे जब आपने जीवन भर याद किया है, यानी जीवन भर आपने उचित कर्म किए हैं। कृष्ण को याद करने का क्या अर्थ है? कृष्ण का नाम लेना। कृष्ण को याद करने का अर्थ है उस भाव से, यू नो, दिस इज वेरी इन इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। ऑल्दो इमोशंस जो है उनको हम हिंदी में भावनाएं ही कहते हैं, और हम जानते हैं कि इमोशंस आर अनरियल, दे आर वेरी मच आवर हार्मोनल स्टफ। जैसा हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटोसिन है, व्हाटएवर, उसके अनुसार हम महसूस करते हैं, और हम जैसे थॉट्स को अपने अंदर मूव करने देते हैं उस प्रकार के हॉर्मोन्स को हम एक्टिवेट भी करते हैं। यू थिंक ऑफ गुड ओकेजन्स, यू विल स्टार्ट स्माइलिंग, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग गुडनेस, फीलिंग गुड। यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, अपने आप भीतर एक आक्रोश आप महसूस करेंगे। जरा याद कीजिए कि मैंने कभी आपके साथ बहुत बुरा किया था, आप वो याद करेंगे और वो याद करने में ही आपके भीतर आक्रोश आ जाएगा, जैसे कि आप वो एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं। क्रोध आ जाएगा मेरे प्रति, कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो हमारी सोच है, हमारे जो विचार हैं, यही हमको वो भावनाओं तक लेके भी जा रहे हैं। एक श्रेणी की भावना वो भी होती है जो बहुत उच्च कोटि की है, और उसी में ग्रैटिट्यूड आता है, धन्यवाद भाव आता है। दैट्स अ इमोशन ओनली, बट ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी, बिकॉज दैट अलाउज, एक इमोशन है जिसमें आपका मैं भाव गहरा हो जाता है। आपको आक्रोश आएगा मेरे प्रति तो आपका मैं भाव गहरा होगा। आपको कुछ अच्छा लगेगा कि आपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया था, आपकी तारीफ हुई थी, व्हाटएवर, आपका मैं भाव, अहम भाव गहरा होगा। But then there is an emotion which we call it to be high quality one, because वो आपके मैं भाव को ढीला करता है, विगलित करता है, जो कि है ग्रेटिट्यूड का इमोशन, थैंकफुलनेस का इमोशन। क्योंकि जब आप धन्यवाद भाव से भरे होते हैं तो आप कहते हैं इतना कुछ तो है, तू कितना महान है। So what is important? Is it me or is it he, that? So when you are taking Krishna name, with which bhava are you taking the name? That bhav is, that becomes your characteristic. आप जिस भाव में होते हैं ना, वो ही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। That is what you start to become. तो कृष्ण का नाम लेने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके भाव जो है वो उचित हो, आप, आपके भाव जो है वो धन्यवाद भाव में, आप अनुकंपा महसूस करें, आप यू एक्सपीरियंस कि उसका उसका कितना मेरे ऊपर ऊपर उपकार है। तो जब वैसे आप कृष्ण को याद करते हैं, देन यू यू डू नॉट नो दिस, बट every cell in your body is changing, every cell in your body is learning to accept that feeling, और ये पूरा परिवर्तन आपके शारीरिक रूप में भी होता है। इसी परिवर्तन के कारण मीरा को विष ने छुआ भी नहीं, कोई कृष्ण नहीं आए थे वहां उस वक्त उन्हें बचाने को, बट बिकॉज हर एंटायर सेल हैड अंडरगॉन दैट म्यूटेशन, इसीलिए द पॉइजन डिड नॉट इम्पैक्ट। तो जब कृष्ण को याद कर रहे हैं पूरे जीवन, तो किस भाव से याद कर रहे हैं ना, वो महत्वपूर्ण है। बिकॉज ओनली व्हेन यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट फ्रॉम योर एंटायर बीइंग, तभी आप मृत्यु के क्षण में भी कृष्ण को याद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये सवाल इसलिए मेरे मन में आ रहा था क्योंकि अभी वो रामायण भी देख रही हूँ ना, तो एक मन में पहले से ही बस एक क्वेश्चन था कि लास्ट मोमेंट में ना रावण ने प्रभु राम का नाम लिया, तो एक तो वो थोड़ा आश्चर्य भी था, इतना लेकिन वॉर हुआ एंड देन, तो अब कुछ में ऐसा कहते हैं ना कि वो निर्वाण लास्ट मोमेंट वो ले लिया, तो आई मीन आई डोंट नो राइट रॉन्ग, तो क्या इसकी बहुत ये सी लाइक कहानियां हैं,
इसका एक अर्थ ये भी है कि अंत क्षण में रावण को राम कौन है इसका बोध हो गया, इसलिए उसने नाम ले लिया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 का अब हम एकदम एग्जाम मोड में बैठे हैं, किसका नंबर आएगा, किससे पूछा जाएगा। मैंने रोल तो नंबर। शीट ड्रॉप कर गए थे, अभी अभी भी वापस आए हैं, इसीलिए आई थॉट वी विल डू अल्टरनेट। ठीक है, चलिए 6। यौ यौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यम यम whatever whatever, वह अपि स्मरण भवम, और इवन जो कुछ भी आपको स्मरण होता है, whatever you think about, त्यजति अन्ते कलेवरम, while leaving the body, त्यजति is त्यागना, अंते अंत कलेवरम शरीर को त्यागना। तो शरीर को त्यागने के समय जो जो भाव आपको आते हैं, आपको स्मरण रहते हैं, तम तम एव एति, that certainly, एति is attain, you attain, कौन्तेय, और यहाँ पर बता रहे हैं कौन्तेय ओ सन ऑफ कुंती। अभी वो अर्जुन को याद, वो गांडीवधारी नहीं कह रहे हैं, पार्थ नहीं कह रहे हैं, कौन्तेय कह रहे हैं, क्योंकि क्या आइडेंटिटी है अर्जुन की, कि वो कुंती पुत्र है। बिकॉज सॉरी, कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता, ऑलवेज दैट भाव भाविता, जिस भाव में तो एब्जॉर्ब्ड। So at the end, while leaving the body, whatever he remembers, certainly that he attains, as he is absorbed in that bhava, o Kaunteya. So जो भाव आपके जीवन भर रहते हैं, वही भाव आपके अंत समय भी रहते हैं, इसलिए आप ऑटोमेटिकली उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हो और उसी के साथ जाते हो। दिस इज समथिंग जिसके बारे में I got to understand through different processes. Because I had not read Gita extensively like this. So when I came across this, I was so, मतलब मैं एक mixed feeling थी. I was happy from within and I was also very amazed कि देखो, जो हम समझते थे मृत्यु के बारे में, कृष्ण वही सब बता रहे हैं, वो बता चुके हैं। So it was like what I knew, I got a validation to all of that. Yeah. तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अभी अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया है। शरीर को त्यागने के समय जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति याद करता है, और इसमें कहते हैं गीता प्रेस में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तो आप प्रति क्षण किस भाव से भावित हैं? In what kind of bhava are you absorbed every moment? This at least gives us very clearly, we need to be mindful of that. हमको इसका पता होना चाहिए कि हम किस भाव से हर समय अपने आप को घेर के रखते हैं। कुछ लोगों को देखेंगे कि क्रोधित होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, कुछ लोगों को प्रसन्नचित होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, कुछ लोगों को सरकास्टिक होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। Imagine what they are from within. क्या है उनके भीतर हर क्षण? क्योंकि जो उनके भीतर हर क्षण है,
वो ही फिर बाहर आता है ना। कुछ लोगों को शिकायत करने से समय बिल्कुल तुरंत से शिकायतें निकल के आती हैं। कुछ लोग तुरंत से दूसरों की बुराइयां शुरू कर देते हैं। इट डजंट टेक देम टाइम, एंड दैट टेल्स यू किस भाव से व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम जब हीलिंग प्रोसेसेस में जाते हैं ना, तो वी टेल पीपल, कोई आपके लिए बुरा करता है ना, ब्लेस देम, क्योंकि वो भीतर से कितना दुखित है कि वो बुरा कर रहा है। Why is that vengeance in that person? Bless them that they get rid of this feeling. May God, may Almighty give them this blessing. इसीलिए फिर जब आप पद्धतियों के पास जाते हैं, they ask you to forgive. पूरा एक पद्धति तो इसके ऊपर बेस्ड ही है, Ho'oponopono. I find it so confusing to even pronounce. That is based on, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. These are the 4 standard sentence which they ask you to use as chanting. इसकी और भी कुछ होंगी चीजें, I'm not aware much of about it, but this is what I know. But this is the foundation of this particular practice. क्यों? क्योंकि आप अपने आप को तो नेगेटिव थॉट्स से, दूसरों के विषय में बुराई करने से, सरकास्टिक होने से, rid yourself of all that. उन चीजों से खाली करें स्वयं को। जब आप उन चीजों से स्वयं को खाली कर पाएंगे, तभी आप अंत काल में कृष्ण को याद कर पाएंगे। उनसे खाली करोगे तब कृष्ण भरेंगे। देखो इसके पीछे बोला है ना, जो ठोस है उसका हमको हर क्षण पता चल रहा है, तो अपने आप को जो पता चल रहा है उससे भरना बहुत आसान है, बहुत सरल है। किंतु जो सूक्ष्म है, जो अपरिवर्तनीय है, जो अक्षय है, उसका तो हमको पता ही नहीं चलता। तो जो पता ही नहीं चलता उससे हम स्वयं को भरेंगे भी कैसे? इसीलिए तो ईश्वर के विषय में इतनी थीसिस है, नास्तिक है, आस्तिक है, एथिस्ट है, एंड ऑल दैट। होता ही नहीं ये सब कुछ ना, यदि ईश्वर भी सामने दिख जाते आपको तो पदार्थ रूप में। सो प्लीज नो, पदार्थ से स्वयं को भर लेना, एंड इवन थॉट्स आर दी पदार्थ। आपके विचार भी पदार्थ ही हैं, दे आर मैटर। Every matter has frequency, your thought also has frequency. They are matter. They may be subtle matter than the gross matter, but they are matter. तो अपने आप को किस चीज से आप भर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। सटल चीजों से भरना बहुत कठिन होगा, अपरिवर्तनीय, अक्षय, बहुत कठिन होगा। इनफाइनाइट, उसके बारे में सोचे भी तो कैसे। और ठोस चीजों से भरना बहुत सरल होगा। मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे अपना ड्राइंग रूम ऐसा बनाना है, मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे शादी में जाना तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे पार्टी में जाना तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए। सब ठोस है, तो अपने आप को इनसे भरना बहुत आसान है, बहुत सरल है। और जिससे आप भरोगे वैसे ही भाव आपके भीतर बैठेंगे, उतने गहरे होंगे। और जैसे भाव आपके गहरे होंगे उसी प्रकार का आपको स्मरण रहेगा अपने शरीर के मृत्यु के क्षण में। ठीक है, हाँ विद्या बोलिए।
Mute. मैं टाइम भी देख रही हूँ. Is it a good time to share something? It's in regards to that same topic. Go ahead. Yesterday, I got a chance to meet someone who's in hospice, which is when someone decides that they don't want to be on the medication and doctor have told you that you can't get any better. So it's up to you. You either refuse to take everything or you still want to keep going. तो मेरी फ्रेंड की मम्मी है और she's 83. She's on dialysis. Before I came to India in January, I saw her then. And तब से मुझे ऐसे back of the mind, it's might happen anytime. But she came to hospice like on Tuesday. So now she's in home care on no medication. She said, I don't want to deal with anything, no more medication, no nothing. She's diabetic, she has high blood pressure. And everyone is going to meet her, so I went to meet her yesterday. And that was the experience that I have never had in my life. जहाँ मैं सोच रही थी कि सब लोग गमगीन होके बैठे होंगे या she will be sad. It was such an amazing experience. And जो आप बात कर रहे हैं ना, उसका बिल्कुल in person मुझे देखने का मौका मिला. She's laughing. She's happy that she's going on this just transitioning into the next realm. And someone who came to visit her and they asked her, are you scared? She's like, whoa, why should I be scared? जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो तो बहुत अच्छी जगह है. Like she's seen it or she knows it. और उनकी friends भी काफ़ी pass away हो गई in last few years. So everybody's laughing and she's saying, yeah, I'm just going to go up there, have a party with my friends. And she's so jovial about it. Like there's no fear of dying. There is nothing she wants to hold on to. And her daughter started crying and then she's like, why are you crying? And then she started crying. So she's like, जा तो मैं रही हूँ, तू क्यों रो रही है? But it felt so good that how can someone, I have never seen in our culture, because I have always seen people either complaining or scared or very insecure what's going to happen after me if I leave the world. But I have never experienced such a person who's so much at peace. And she's telling me that मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है. मैंने बुरा वक्त भी देखा है, अच्छा वक्त भी देखा है. मैं हमेशा खुश रही हूँ. जो भी वक्त आया, I dealt with it. And I'm happy where I am today. And I'm okay that I'm leaving. I don't have any remorses or anything. But it was such an amazing experience just to see her talking. I sat there and talked to her for 2 hours. And she kept talking. And तो मैंने बोला, मम्मी आपको है ना क्या जाने से पहले मुझे कुछ सीख देनी है, कुछ अपने लाइफ के बारे में कुछ क्या बताना चाहते हो आप, मुझे बताओ. And she said, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो जिस घर में जाता है उसे कुछ पता नहीं होता है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है. और he lives his life according to what he's brought from his past karmas. And जिसके जितने कर्म होंगे भोगने के वो उतना ही जिएगा. अगर किसी की जल्दी भी मृत्यु होती है, she lost her son long time ago. तो इसलिए क्योंकि उसके कर्म खत्म हो गए. और जिसकी जिंदगी ज़्यादा है, ज़्यादा साल जीता है, उसके कर्म अभी उतने कटे नहीं हैं, तो वो अभी जिएगा. और शायद मेरा टाइम आ गया, जितना टाइम होगा अभी, जितने 1-2 दिन हैं, 2 हफ्ते हैं, जो भी हैं, निकल जाएंगे. But there was such a sense of ease and peace. And I don't know, it's just whatever you were reading, it just connected right away. It was very heartwarming to see something like that. When we take birth, we create our blueprints, what we are going to deal with in this particular lifetime. So at the Karan Sharir level, which
vrittis are going to be dominant in this life, which are going to be dormant. And based on all that karmic affairs that we want to work with, we choose parents who can provide us that particular environment wherein we get the opportunity to have the lessons that we have designed for ourselves to learn in the lifetime. Because at the end of the day, we all have to move towards Buddhahood. So what do I need to learn? And those will be my challenges. And those challenges will come through me by paying off my karmic debts. And then there's a lot of stuff into it. So all I'm trying to say is, इसी को प्रारब्ध कहते हैं. कर्म सारे जो हो गए वो संचित कर्म है. जो हिस्सा हम इस जीवन में जिएंगे उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम इस जीवन की डेस्टिनी को हम कहते हैं. प्रारब्ध को बदला भी जा सकता है. अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ इट यू कैन चेंज, एंड द रेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू. शरीर बहुत गहरा प्रारब्ध का हिस्सा होता है. जेनेटिक डिजीजेस गहरी होती हैं हिस्सा. But when you are doing a lot of sadhana, you can even change this. Mutation happens even at the DNA level. But some will not change. If you have chosen to take birth in certain set of situation, that's your prarabdha. That's a prarabdha you have chosen for yourself. तो इसलिए आपको वैसा ब्रिंगिंग मिलता है. तो हम कई बार जो शिकायत रखते हैं अपने माता पिता से कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने चूज ही किया था ना कि हमको वही तो सीखना है. तो that's why I always say, to know what is your lesson in this life, just see what you are struggling with, what you are resisting, what you are finding very difficult to deal. Those are your lessons of the life. अगर आप अपने माता पिता के बिहेवियर को डील नहीं कर पा रहे हैं, उनके क्रोध को डील नहीं कर पा रहे हैं, तो that's your lesson to be more patient and more loving even to such behavior. अगर आप चेंज बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है कि चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, your lesson is to learn how to flow. So yeah, relationships are assignments. I think a year or two ago I was talking to my friends. मैंने कहा कि मैंने बहुत शोध वोध कर लिया और मुझे एक ही बात समझ में आई है कि ये जो शादी वादी होती है ना, ये कोई कंपेनियनशिप वो सब नौटंकी के लिए नहीं होती है जो हमने सामाजिक रूप से बना दिया है. वो सिर्फ होती है क्योंकि हमारे कार्मिक पैटर्न्स को हमको डील करना है. दैट्स व्हाई सर्टेन पर्सन कम्स जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा डेट होता है, या फिर जिनके साथ सबसे अच्छा ये होता है, बिकॉज दैट हैज टू बी बैलेंस्ड. And most of the time, this person gives us the biggest lessons of life. So there is nothing to complain about. You chose what you're going through. And now you have a choice. What do you want to go through? Depending upon आप कितना पकड़ के रखते हैं, कितना लेट गो करते हैं, कितना फ्लो करते हैं, कितना आप ग्रेटिट्यूड में जीना सीखते हैं, आप अपने पूरे हिसाब को परिवर्तित करते हैं. There is no sadhana outside relationship. Relationship are big sadhana. लेकिन देखो ये पता नहीं, पिछली बार भी शायद मैंने कहा, भी किसी को मैं कह रही थी, 3 स्तर होते हैं. जो हमारा सबसे निचला स्तर होता है ना, वो होता है बिलीफ सिस्टम कंडीशनिंग का. उसमें हम जो कुछ भी करते हैं क्योंकि मुझे सिखाया गया है that as a wife I should be like this, as a mother I should be like this, as a working professional I should be like this, code of conduct. उस कंडीशनिंग से मैं अपने जीवन को जीती. वो सबसे निचला तल है. इसके ऊपर का जो तल है, वहां पर आती है जो हम पूरा हिसाब किताब देखते हैं, जिसका पूरा बिजनेस है, लव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ द प्रायोरिटी.
क्योंकि कंडीशनिंग में हमको अपना भी कुछ पता नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ लॉट इनटू कंप्लेनिंग मोड, लॉट इनटू विक्टिम मोड। तो इसका ऊपर का तल होता है जब हम इस बात को चूज करना सीखते हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ चॉइस। मुझे क्रोधित नहीं होना है, वट एवर द circumstance be, howsoever people behave with me, I do not have to get angry, I don't have to get upset, I must know how to say no, I must know how to draw my boundaries। ये हमारा वो तल है जहां पर हम चुनाव करना सीखते हैं। और चुनाव में सबसे पहले चुनाव करना होता है कि भाई ये जो भीतर इतना हर्ट ग्रीवांसेस सब बैठा है ना, इसको हटाना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग टू चूज। इसके ऊपर होता है तीसरा तल। वो तल होता है आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। वो तल होता है व्हेन यू से मैं तो शिव की स्लेव हूं, वो जो बोलते हैं। So whatever is happening in my life is his direction. What is my job? To keep remembering him all the time with that bhav, in gratitude, to keep dancing whatsoever be the circumstance, because all is so well. मुझे इसमें wellness क्यों नहीं दिखती? So I am the Kathputli of Shiva, and I'm loving being that. I am so absorbed, so soaked, so immersed in that. मुझे अपने होने का कुछ पता ही नहीं है, पर फिर मुझे इस दुनिया के भी होने का कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ शिव के होने का पता है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो ना, आई हर्ड रिलेशनशिप इज दी साधना, दिस इज सेकेंड लेवल। वहां आपकी साधना है कि पहले कंडीशनिंग से ऊपर उठो। आपको जो बता दी गई है वो सब बातें सही नहीं है। Come out of that. See, there is somebody who is undergoing all of that. Choose to say no. Choose to create boundaries. But then the sadhana that the monks do, जो कि आप परिवार में भी रह के कर सकते हैं, is to be his puppet, to dance on his tune, to always celebrate whatever the situation be, because all the situation is given by him. हर पत्ता उसकी इच्छा से हिलता है, हर चीज में प्रभु है, कण कण में भगवान है। So I dance whatever the situation is. Then you become part of the Leela. Then you become part of the Leela. अब यहाँ पे कोई मुझे कुछ कह रहा है, कहने दो, मैं ही कौन हूं? Who am I? फिर यहाँ पे व्यक्ति मीरा बन जाता है। उसे ना घर छोड़ने में कष्ट होता है, ना रिश्ते छोड़ने में कष्ट होता है। कहते हैं ना, मुझे इतनी सुंदर लगती हैं ये पंक्तियां, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, बैठी संतों के संग। क्या है लाइन? रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। और ये जो इसके मीरा के जो लिरिक्स है इसमें, मारा री गिरिधर गोपाल, उसमें कहती हैं, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोया। So then you do not bothered about लोक लाज। साधु की संगत वो महत्वपूर्ण है। सो चेष्टा हमारी हमेशा तीसरे तल पर जाने की होनी चाहिए। उसमें you are constantly changing the ground level and you are operating at the mid level. तो जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, they will find themselves dwindling between these three a lot of time if you are into spirituality. चेष्टा ये हो कि आप जितना ज्यादा तीसरे तल पर हो सके।
खाना बनाया, घर के लोगों के लिए बनाया, लेकिन खाना नहीं बनाया, मैं तो उसकी सेवा कर रही हूँ। तो जो बना वो अच्छा, किसी ने अच्छा कहा तो वो अच्छा, किसी ने बुरा कहा तो भी अच्छा, उसकी सेवा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पर फिर भी आई हैव नो से ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। हो सकता है मेरे नमक डालने के समय बत्ती चली जाए, मुझे पता ही ना चले, ज्यादा गिर जाए। So everything done for that, soaked in that, remembering that. ठीक है, चलिए, anything else? So we stop here. We will meet at 8 o'clock every Friday now instead of 8:30. I'm doing some change in my schedule. Sit straight, close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Krishna Kripa.